Dear students, welcome back. Now, today we are going to discuss a very important topic from your second year compulsory English, that is transformation or change of degree without changing the meaning. Okay, so let me share my experience with you. I have seen most of the students skipping this question in their final exams. They are either not attempting it at all, or if some of them are attempting, then they attempt it wrongly. Okay, so this carries 5 marks, and it is quite important and very easy if you go through this video. So at the end of it, you will be able to do this exercise very easily. So it is regarding change of degree of adjectives, right? So you'll be asked 5 questions for 5 marks, and you will have to transform or change the degree into the given one. Okay, so first of all, let us understand what are degrees of adjectives. As you know that you already know that verb has got 3 forms. The verb ka form, present, past, past participle. Similarly, adjective means something which tells the quality of a noun or which qualifies a noun. जो noun की quality को बताता है उसको adjective कहते हैं, हिंदी में विशेषण कहते हैं. So there are 3 degrees of adjectives. You know them already in your lower classes. You have gone through them. Still, just to remind you, the degrees are formed normally or generally by adding er and est. But in some cases we use more and most also. So I'll just clarify your doubts regarding where to use more and most and where not to use more and most, and only er and est is to be used. So before we go into that, let us revise some degrees of adjectives. Like beautiful, you know that beautiful, more beautiful, most beautiful. Big, bigger, biggest. Black, blacker, blackest. Bright, brighter, brightest. Clean, cleaner, cleanest. So here you can see that in some adjectives we are just adding er and est. So there are basically 3 degrees of adjectives. First is called positive, that is the base. Second is comparative, which is generally formed by adding er to the base or base adjective, like bright, brighter. And the third is superlative, that is you add est. So bright, brighter, brightest. Okay, clean, cleaner, cleanest. Dirty, dirtier, dirtiest. So there shouldn't be any difficulty regarding this. So you know them already. If you don't know, just go through them and just revise them. Late, later, latest. So if I ask you what is the comparative degree of late, you will say later. er add कर दिया आपने. Latest उसकी जो है superlative degree. Okay, now okay, many times you will be confused when to use er, est और कहाँ पे हम more or most लगाएंगे. So there is a rule regarding this. Okay, now you see here, whenever you pronounce these words, these adjectives, so you have now if you say beautiful, beautiful, जब आप ब्यूटीफुल बोलते हैं तो एक सांस में नहीं बोलते हैं, ब्रेक लग रही है इसमें. बी यू टी फुल, ब्यूटीफुल. सो ये जो ब्रेक है इसको सिलेबल्स बोलते हैं. सो बेसिकली बी यू ब्यू टी 2 3, देयर आर 3 ब्रेक्स है. तो आप इसको ब्यूटीफुलर नहीं बना सकते, आप इसको क्या बनाएंगे, मोर ब्यूटीफुल. तो यू जस्ट गो थ्रू दीज वर्ड्स. ब्राइट, इसमें कोई ब्रेक नहीं है, सीधा आप er लगा के ब्राइटर बना सकते हैं और उसका ब्राइटेस्ट बन जाएगा. ठीक है. कन्फ्यूज्ड, नाउ कन्फ्यूज्ड पे आइए. कॉन्फ्यूज्ड, ब्रेक लग रही है यहाँ पे. कॉन्फ्यूज्ड मतलब 2 सिलेबल कंप्लीट सिलेबल्स हैं. आप ऐसे भी देखेंगे तो अगर इसमें er लगाने की कोशिश करेंगे आप,
मान लो आपको नहीं समझ में आ रहा, आप ईआर, तो ये वर्ड जो है बहुत अटपटा जैसा लगे, कन्फ्यूजडर, कन्फ्यूजडर, सो वो दैट इज़ वो अननेचुरल जैसा लग रहा है आप। और सिंपल मैंने बता दिया, जहाँ पे वेयर यू गेट 2 और मोर सिलेबल, सिलेबल का मतलब है हिंदी में जिसको मात्रा बोलते हैं। तो कन्फ्यूज्ड, इसमें 2 पार्ट में 2 सिलेबल्स कंप्लीट हैं, तो इसका कन्फ्यूजडर नहीं होगा, इसका मोर कन्फ्यूज्ड, मोस्ट कन्फ्यूज्ड। सिमिलरली डिफ़िकल्ट, डिफ़िकल्ट कभी आप डिफ़िकल्टर नहीं होगा, तो डिफ़िकल्ट, क्योंकि इसमें 3 ब्रेक लग रही है, डी फी कल्ट, 3 कंप्लीट सिलेबल्स, 3 है, 2 से ज़्यादा, तो 2 या 2 से ज़्यादा, तो इट विल बिकम मोर डिफ़िकल्ट, मोस्ट डिफ़िकल्ट। अब आप डर्टी पे आए, डर्टी, डर्टी एक ही सांस में बोल रहे हैं, कोई ब्रेक नहीं लग रही है, दूसरे के लिए हम नहीं रुक रहे, डर्टी, तो सीधा हो जाएगा डर्टियर, डर्टीएस्ट। सिमिलरली आप फा इसमें भी एक ही है, तो फार, ये इसमें फार नहीं होगा, ये कुछ जो हैं वो अलग ही होते हैं, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, उनका कोई रूल नहीं है, यू हैव टू रिमेंबर देम। जैसे फार का फार्दर, फारदेस्ट, फार्दर, फारदेस्ट, कुछ जैसे गुड, गुडर नहीं होगा, गुड का बेटर, बेस्ट। तो ये कुछ हैं दैट यू विल हैव टू जस्ट लर्न, ओके, एंड सेट देम इन योर मेमोरी। ओके, बाकियों में सब में EREST, जैसे फैट, फैट कोई ब्रेक नहीं लग रही है, तो फैटर, फैटेस्ट, fierce, fierce, fiercer, then late, later, latest, old एक ही बार में बोल रहे हो, poor एक ही बार में बोल रहे हो, poor, poorest, proud एक ही बार में, out एक ही मात्रा है, एक ही सिलेबल है, तो prouder, proudest, sharp एक ही सांस में बोल रहे हो, sharper, sharpest, short अगेन कोई ब्रेक नहीं है, shorter, shortest। अब नेक्स्ट पे है स्ट्रेंज, स्ट्रेंज, ये वर्ड बहुत बड़ा लग रहा है आपको, लेकिन इसमें एक ही सिलेबल है, एक ही सांस में बोल रहे हैं आप, स्ट्रेंज, स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजेस्ट, स्ट्रॉन्ग, सिमिलरली स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट। अब यहाँ पे आइए फैसिनेटिंग, फैसिनेटिंग, अब देखो 3 बार ब्रेक लग रही है, फैसी, फैसिनेटिंग 4 बार, तो इसका फैसिनेटिंगर तो कभी हो ही नहीं सकता, तो क्या होगा, मोर फैसिनेटिंग एंड मोस्ट फैसिनेटिंग। सो दिस इज हाउ यू कैन फॉर्म द 3 डिग्रीज। देयर इज अ वेरी सिंपल रूल, आप वर्ड को बोलिए मुंह से, इफ यू फील दैट यू आर एबल टू स्पीक इट इन वन गो, देन यू यूज ER और EST, और इफ देयर आर ब्रेक्स, जैसे मैंने कहा फैसिनेटिंग, तो एक ही सांस में आप नहीं बोल पा रहे हैं, यू आर ब्रेकिंग इट अप इनटू सिलेबल्स, 2 से ज़्यादा जहाँ भी आएंगी आवाज़ या ब्रेक लगेगी, तो आपको मोर और मोस्ट लगाना है, अदरवाइज सिंगल एक सांस में बोल रहे हैं आप, देन यू जस्ट ऐड ER एंड EST, जैसे ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, क्वाइट, क्वाइटर, क्वाइटेस्ट, शार्प, शार्पर, शार्पेस्ट। और देयर आर सम विच आर इरेगुलर फॉर्म, जिनको कहते हैं उनको आपको याद ही रखना पड़ेगा, गुड है जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, फार, फार्दर, फारदेस्ट। So this is how you make 3 degrees of adjectives, and it is very important to understand them: positive, comparative and superlative. ये 3 डिग्रीज। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। नाउ व्हाट इज पॉजिटिव डिग्री? पॉजिटिव जो सिंपल फॉर्म है एडजेक्टिव की, द बेस फॉर्म जो हमने वहाँ पे देखी। सो पॉजिटिव डिग्री, वेन एवर यू राइट अ सेंटेंस इन पॉजिटिव डिग्री, आप अपनी तरफ से क्या यूज़ करेंगे? एज दोनों तरफ, as bright as light as poor as, ठीक है। यहाँ फर्स्ट डिग्री आएगी, जो भी पॉजिटिव डिग्री जिसको हम बोलते हैं, और दोनों तरफ as लगा होगा, तो वो क्या होगी? पॉजिटिव डिग्री। अगर वो एफर्मेटिव है, अगर वो नेगेटिव नहीं है। अगर नेगेटिव लगाना है तो नॉट लगा दो इसके पीछे, नॉट एज गुड एज, या नॉट एज बैड एज, और नॉट एज क्लेवर एज। ओके, सो देन you have other things, here are examples you can see कैसे बनाना है अपने पॉजिटिव। जैसे गुंजन is as smart as, तो आपने पॉजिटिव बनाने के लिए दो चीज़ें याद रखनी है। आप जो है वो
दोनों तरफ क्या लगाएंगे, एज लगाएंगे, और बीच में क्या लिखेंगे, वो फर्स्ट डिग्री लिखेंगे। जैसे स्मार्ट है, एज स्मार्ट एज, मुंबई इज एज बिजी एज। ओके, देन यू हैव एज एक्सपेंसिव एज, राइट। देन so this should be clear to you. Okay, so now पॉजिटिव बनाने के लिए आपने क्या लगाना है, सिर्फ अपनी तरफ से एज लगाया दोनों तरफ और फर्स्ट डिग्री आपने बीच में लगा दी, तो इस तरह पॉजिटिव बन जाएगा। हाँ, इसका मतलब भी समझना है आपको, दैट आई विल कम टू लेटर, बिकॉज आप चेंज करेंगे सेंटेंस को एक डिग्री से दूसरी में विदाउट चेंजिंग द मीनिंग नहीं बदलना है। तो जैसे मान लो गुंजन इज़ एज स्मार्ट एज प्रीतम का मतलब हुआ गुंजन प्रीतम के बराबर ही स्मार्ट है। अगर आप इसको कन्वर्ट कर देते हैं कंपैरेटिव में और प्रीतम को ज़्यादा स्मार्ट बताते हैं गुंजन से, तो चेंज हो गया, मीनिंग चेंज हो गया। दैट यू डोंट हैव टू डू दैट, आपने मीनिंग चेंज नहीं करना है। ओके, सो माई पेन इज़ नॉट एज एक्सपेंसिव एज योर्स। इसी तरह से विपिन, ये नेगेटिव है, विपिन इज़ नॉट एज क्लेवर एज। सो यहाँ से आपको दो ही चीज़ें याद रखनी है। पहला, आपने फर्स्ट डिग्री यूज़ करनी है पॉजिटिव, जिसको कहते हैं बेस, और उसके दोनों तरफ एज लगाना है, आपकी पॉजिटिव डिग्री बन जाएगी। सेकंड इज़ कंपैरेटिव। कंपैरेटिव में आपको पता है सेकंड जो फॉर्म है, सेकंड जो डिग्री है, दैट इज़ कंपैरेटिव। कंपैरेटिव का मतलब उसमें वो इक्वल नहीं है, अनइक्वल है, सो देयर इज़ अ सेंस ऑफ कंपैरिजन। ओके, तो हम जैसा मैंने बताया आपका, आप सेकंड डिग्री ऐड कैसे बनाते हैं, या तो ER ऐड करते हैं, या फिर अगर इरेगुलर फॉर्म है तो यूज़ करते हैं, जैसे गुड का बेटर या फार का फार्दर। तो जहाँ भी ER लगा होगा वो समझो आपकी कंपैरेटिव डिग्री। जैसे फॉर एग्जांपल हेयर यू सी। और दूसरी चीज़, जैसे आपने पॉजिटिव में एज लगाया था, यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, देन, सेकेंड डिग्री और देन। तो टॉल का हो गया टॉलर और साथ में हो गया देन, राइट। सेकेंड डिग्री आपने लगा ली और साथ में आपने देन लगाना है अपनी तरफ से। जैसे ब्रेवर देन, ये सेकेंड डिग्री होगी, देन। ओके, देन यही देखो, आयरन इज़ हार्डर देन वुड, तो आपने क्या किया, सेकेंड डिग्री लगाई और साथ में देन लगा दिया, THAN। इसको ध्यान रखें आप, कंपैरिजन में आप ये THAN देन लगाएंगे। ओके, और साथ में सेकेंड डिग्री, ये देन नहीं लगाएंगे। कई बच्चे, सम ऑफ यू कंफ्यूज देन एंड देन। तो ये देन का मतलब तब होता है, दिस इज डिनोटिंग टाइम, और ये जो है ये कंपैरिजन के लिए आप यूज़ करते हैं THAN देन, राइट। देन you have so you have understood I think comparative degree। कुछ नहीं करना है आपने, सेकेंड डिग्री लगानी है। टॉल का टॉलर हो गया, साथ में देन लगा दिया। ब्रेव का ब्रेवर हो गया, साथ में देन लगा दिया। हार्ड का हार्डर हो गया, साथ में देन लगा दिया। और इन सम केसेस आप ये ER नहीं लगा के मोर लगाते हैं। मोर कहाँ लगाते हैं मैंने समझा दिया आपको, जहाँ पे दो से ज़्यादा सिलेबल्स हैं, जहाँ पे बोलने में ब्रेक लग रही है, जैसे मैंने बोला था पिछले स्लाइड में, जहाँ से एक से ज़्यादा ब्रेक लग रही है, जिसको आप एक सांस में नहीं बोल पा रहे। सो उसमें आप क्या करेंगे, देयर यू विल बी यूजिंग मोर और मोस्ट। ओके, सो फॉर एग्जांपल आपने अगर इंटेलिजेंट यूज़ करना है, इंटेलिजेंट, तो आप देखो इस वर्ड को बोलेंगे आप तो कितनी ब्रेक लग रही है, इंटेलिजेंट। इन हो गया 1 2 3 4, तो यहाँ पे आप ER नहीं लगा सकते। वैसे भी आप इंटेलिजेंटर नहीं बोल सकते, आप खुद ही कॉमन सेंस से आ ही जाएगा, ये एबनॉर्मल जैसा लगेगा। तो क्या बोलेंगे आप, क्या यूज़ करेंगे, मोर इंटेलिजेंट। एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिवर ऐसा नहीं होगा, एक्सपेंसिवर नहीं बोल सकते आप, यू यूज़, इसमें भी 3 ब्रेक लग रही है, देखो, एक्सपेंसिव। तो ये सिलेबल्स हैं, 2 से ज़्यादा है तो 2 या 2 से ज़्यादा, देन यू आर यूजिंग मोर। तो टोक्यो इज़ मोर एक्सपेंसिव दैन दिल्ली। देन इसके साथ ही रहेगा, ये इसकी पहचान है कंपैरेटिव की। जैसे पॉजिटिव की थी एज, हम दोनों तरफ एज लगा रहे हैं, उसके साथ में फर्स्ट डिग्री लगा रहे हैं। और कंपैरेटिव कैसे बना रहे हैं, सेकंड डिग्री यूज़ कर रहे हैं,
जहाँ ई आर लगता है वहाँ ई आर लगाते हैं, जहाँ मोर और मोस्ट लगेगा वो मैंने समझा दिया आपको कहाँ मोर और मोस्ट लगेगा। जैसे स्पेशियस, 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 इसमें भी दो कंप्लीट सिलेबल्स, ओके, तो क्या होगा, इसको भी मोर लगेगा, मोर स्पेशियस। इंटरेस्टिंग, 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 ठीक है, इतनी सारी ब्रेक लग रही है तो मोर इंटरेस्टिंग होगा इसका कंपैरेटिव। सो आई थिंक यू अंडरस्टूड। आप कैसे सेकंड डिग्री लगाएंगे, आप साथ में देन रखेंगे, और जहाँ पे ई आर लगेगा ई आर लगा देंगे, जहाँ सिंगल एक ही बिना ब्रेक के आप वर्ड को बोल पा रहे हैं वहाँ पे ई आर लगेगा, जहाँ पे ब्रेक लग रही है दो या दो से ज़्यादा उसको सिलेबल्स कहते हैं, वहाँ पे आप मोर और मोर लगाएंगे कंपैरेटिव में, राइट। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। बिफोर दैट यहाँ पे थोड़ा सा एक चेंज है, बाकी जगह आप दैन यूज़ करेंगे, लेकिन ये जो 3-4 वर्ड्स हैं जैसे जिनके एंड में ओ आर आता है, जिनके एंड में ओ आर, जैसे सुपीरियर, इन्फीरियर, प्रायर, जूनियर, सीनियर, तो वहाँ पे आप दैन नहीं लगाएंगे, वहाँ पे टू का यूज़ करते हैं। टू, मिस्टर शर्मा इज़ जूनियर टू मिस्टर मिश्रा, राइट। वहाँ दैन नहीं लगाएंगे क्योंकि बाकी जगह पे आप दैन यूज़ करेंगे कंपैरिजन के लिए, लेकिन ये 2-4 जो वर्ड्स हैं और भी होंगे जिनके एंड में ओ आर लगा होता है, जैसे सुपीरियर, आई ओ आर, आई ओ आर, राइट, देयर यू विल बी यूजिंग टू, राइट, इंस्टेड ऑफ दैन। तो ये कुछ ही है, दिस ज्वेलरी इज सुपीरियर टू, आई एम सुपीरियर टू यू, यू आर जूनियर टू मी, यू आर सीनियर टू मी, यू आर सीनियर दैन मी नहीं होता, जूनियर टू, जूनियर टू, सुपीरियर टू, इन्फीरियर टू, राइट। सो ये आप याद ध्यान रखेंगे, विद दीज वर्ड्स यू आर गोइंग टू यूज टू, नॉट दैन, और बाकी सब जगह आप दैन यूज करेंगे और सेकेंड डिग्री यूज करेंगे, राइट। नाउ लेट अस सी, जैसे आपके पास एक सेंटेंस है ट्रांसफॉर्मेशन, हम अभी बाद में देखते हैं, पहले हम सुपरलेटिव डिग्री पे चलते हैं। तो दो हमने देख ली, पॉजिटिव, कंपैरेटिव। पॉजिटिव फर्स्ट डिग्री जो बेस है, राइट, वहाँ पे जैसे स्मार्ट है तो वहाँ क्या करेंगे आप, एज लगाएंगे दोनों तरफ और फर्स्ट डिग्री लगाएंगे बस। कंपैरेटिव में सेकंड डिग्री लगेगी, कहीं ई आर लगेगा, कहीं मोर और मोस्ट लगेगा, और दैन लगेगा, टी एच एन, दैन। और जो सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव, उसका नाम ही सुपरलेटिव है, सुपर मतलब उससे ऊपर कुछ नहीं है, राइट। तो हाईएस्ट डिग्री है, हाईएस्ट डिग्री। जैसे मैं बोलूँ कि आई एम द स्मार्टेस्ट मैन ऑन दिस अर्थ, तो इसका मतलब मेरे से स्मार्ट बंदा कोई है ही नहीं। या जैसे शी इज़ द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास, तो उस क्लास में उससे लंबी कोई लड़की नहीं है, तो ये सुपरलेटिव है। तो इसमें क्या लगेगा, जो ई आर ई एस टी वाले उनमें लास्ट में ई एस टी लगेगा, जैसे वाइजेस्ट गर्ल, वाइजेस्ट गर्ल। और साथ में क्या लगेगा, क्योंकि डेफिनेट है, पक्का है भाई, वही है एक, तो क्या होगा, डेफिनेट एक आर्टिकल लगेगा द। ये हमेशा याद रखें आप, जहाँ भी सुपरलेटिव डिग्री होगी वहाँ डेफिनेट आर्टिकल द लगेगा, द। रेशम इज़ द वाइजेस्ट ऑफ ऑल गर्ल्स, इसका मतलब है रेशम जो है सब लड़कियों में सबसे समझदार है। दिस इज़ द फनीएस्ट बुक ऑफ ऑल बुक्स दैट आई हैव रेड सो फार। द फनीएस्ट मतलब ये उन सब किताबों में से सबसे फ़नी बुक है जो मैंने पढ़ी है अभी तक, ठीक है। ऋषि इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉय इन द क्लास, मतलब उससे स्ट्रॉन्ग कोई है नहीं, द स्ट्रॉन्गेस्ट। यू आर द बेस्ट फ्रेंड ऑफ माइंड, राइट। तो सुपरलेटिव डिग्री जो है वो थर्ड जो डिग्री है, लास्ट जो फाइनल डिग्री है वो है, और उसके मतलब उसके कंपैरिजन कोई नहीं है, वो तो बेस्ट है। जैसे कई जगह पे हम, ये तो हो गया ई एस टी लगा के, बाकी जगह जहाँ मोर और मोस्ट लगेगा वहाँ मोस्ट लग जाएगा। जैसे डेंजरस, डेंजरस के साथ मोस्ट लगेगा। स्नेक इज़ द मोस्ट डेंजरस एनिमल, द मोस्ट डेंजरस एनिमल का मतलब है उससे खतरनाक कोई और नहीं है। ये देखो, द मोस्ट फेमस एपिटोम ऑफ लव, ताज महल, राइट। चिराग इज़ द मोस्ट हैंडसम बॉय इन हिज फैमिली, मतलब उसके परिवार में उससे हैंडसम बंदा है नहीं, राइट। सो मोस्ट, तो दो तरीके से हम सुपरलेटिव बनाते हैं, या तो ई एस टी लगा के या मोस्ट लगा के। वो मैंने समझा दिया, आई हैव मेड यू अंडरस्टैंड मेनी टाइम्स, आई हैव टोल्ड यू। मोर और मोस्ट कहाँ लगेगा, जहाँ दो से ज़्यादा सिलेबल्स होंगे। ब्रेक, ब्रेक देखना है आपने। जैसे डेंजरस, डेंजरस, तो डेंजरस 3 बार, मोस्ट
फेमस, फेमस, दो कंप्लीट सिलेबल्स। हैंडसम, हैंडसम, दो कंप्लीट सिलेबल्स, राइट। तो मोर और मोस्ट लगेगा इनमें, बाकियों में EST लगता है सीधा। फनी, फनियर, फनीएस्ट, वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट, राइट। नाउ अब now how we are going to change, okay, uh, this is how you form degrees, white, whiter, whitest। जहाँ सिंगल सांस में बोल पा रहे हो सीधा EREST लगा दो, white, short, shortest, shortest, tall, taller, tallest। oh, that I have covered। now how to change degree। डिग्री का मतलब है आपको सेंटेंस दिया होगा एक डिग्री में, एंड यू विल बी आस्क्ड टू चेंज इट और ट्रांसफॉर्म इनटू अनदर डिग्री विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। मीनिंग नहीं बदलना है, राइट, वो बहुत ज़रूरी है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। तो ऐसे चेंज करना तो ईजी है, जैसे पॉजिटिव डिग्री है तो एज लगा होगा साथ में, साथ में फर्स्ट डिग्री होगी उसकी बेस। तो आपने क्या करना है, फर्स्ट का सेकंड बना देना है। जैसे हार्ड है तो हार्डर हो गया, और एज की जगह क्या लगा देंगे, दैन लगा देंगे। तो बदल तो गया, लेकिन उससे क्या होता है, मीनिंग बदल जाता है। वो दैट विल सी इन द एग्जाम्पल्स। तो आपने ये हमेशा ध्यान रखना है, जब भी आप डिग्री चेंज करेंगे सेंटेंस की, आप उसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। मीनिंग शुड नॉट चेंज, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो लेट अस सी हाउ वी चेंज नाउ। पहले हम सुपरलेटिव से शुरू करते हैं। सुपरलेटिव से पॉजिटिव बनाएंगे और कंपैरेटिव बनाएंगे। तो सुपरलेटिव डिग्री, फॉर एग्जांपल, आप पहला एग्जांपल दिया कि हार्दिक, ये है हार्दिक, आजकल IPL चला हुआ है, तो हार्दिक के दिन अच्छे नहीं है, बट ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इंडिया हैज़ एवर हैड। सो हार्दिक इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर ऑफ आवर टीम। ये आपको सेंटेंस आएगा, ऐसा एग्जाम में लिखा होगा। चेंज इट इनटू कंपैरेटिव। आपको बोला गया होगा इसको कंपैरेटिव में बदलो या पॉजिटिव में बदलो। हम दोनों में बदलेंगे, वी विल चेंज इट बोथ। नाउ जो चीज़ मैंने आपको पहले बताई थी, पहली स्लाइड में क्या बताई थी, कि जब आप पॉजिटिव बनाएंगे दोनों तरफ एज लगाएंगे, राइट, एज लगाएंगे, साथ में फर्स्ट डिग्री लगाएंगे। ये हमने यहाँ पे सीखा, दोनों तरफ एज लगाएंगे और फर्स्ट डिग्री लगाएंगे, बस इतना सही करना है। जब कंपैरेटिव बनाएंगे सेकेंड डिग्री लगाएंगे, साथ में दैन लगाएंगे, राइट। अब हम देखते हैं, यहाँ वापस चलते हैं अपने सेंटेंस के ऊपर। हार्दिक इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर ऑफ आवर टीम। तो इसका मीनिंग पहले समझना है। मीनिंग क्या हुआ कि हार्दिक जो है हमारी टीम का सबसे स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी है। इसका मतलब क्या हुआ, कोई दूसरा खिलाड़ी उसके बराबर नहीं है। नाउ अभी इफ़ यू चेंज इट, अगर मैं बोलूँ आपको चेंज करो इसको पॉजिटिव में, राइट, तो अगर आप सीधा आपने क्या करना है, पॉजिटिव में आपको फर्स्ट डिग्री यूज़ करनी है, साथ में एज लगाना है। तो आपने यहाँ लिख लिया, मान लो एज, साथ में फर्स्ट डिग्री आपने लगा दी, स्ट्रॉन्ग, एज स्ट्रॉन्ग, ओके, एज स्ट्रॉन्ग एज, दोनों तरफ एज लगाएंगे, फर्स्ट डिग्री लगाएंगे, एज स्ट्रॉन्ग एज, ओके, एज स्ट्रॉन्ग एज, ये हो गया फर्स्ट डिग्री में, पॉजिटिव में एज स्ट्रॉन्ग एज हो गया। अब लेकिन आई शुड नॉट चेंज द मीनिंग, राइट, एज स्ट्रॉन्ग एज, ओके। सो अगर मैं लिखूं तो हार्दिक सबसे स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी है, मतलब क्या हुआ, उसके बराबर कोई नहीं है। तो क्या होगा इसका पॉजिटिव, नो प्लेयर, यहाँ क्या हो जाएगा, ये प्लेयर ऑफ आवर टीम जो है यहाँ आ जाएगा इधर को, लेकिन साथ में क्या लग जाएगा, नो। क्यों, क्योंकि इसके बराबर कोई नहीं है, वो स्ट्रॉन्गेस्ट है, आपको यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। नो प्लेयर ऑफ आवर टीम, ये नो प्लेयर ऑफ आवर टीम इज़ एज स्ट्रॉन्ग एज, ये हार्दिक को उधर ले जाएंगे हम, हार्दिक, राइट, हार्दिक, राइट। तो ये बस इतना ही काम है। इसमें क्या लगा, आपका कुछ नहीं लगा, आपने डिग्री फर्स्ट कर दी, साथ में एज लगा दिया, लेकिन मीनिंग सेम रखना है। क्योंकि अगर आप ऐसा लिखते हो कि सम प्लेयर्स ऑफ आवर टीम या वन प्लेयर ऑफ आवर टीम इज़ एज स्ट्रॉन्ग एज हार्दिक, तो इसका मतलब चेंज कर दे रहे हो। यहाँ पे मतलब है वो सबसे स्ट्रॉन्ग है, मतलब उसके बराबर कोई नहीं है। तो यहाँ क्या लिखेंगे आप सीधा, नो प्लेयर ऑफ आवर टीम इज़ एज स्ट्रॉन्ग एज हार्दिक, बन गया पॉजिटिव, राइट। आपने सेंस नहीं बदलनी है, स्ट्रॉन्गेस्ट लिखा हुआ है तो मतलब उसके बराबर कोई नहीं है। तो नो अदर प्लेयर या नो प्लेयर ऑफ आवर टीम इज़ एज स्ट्रॉन्ग एज
हार्दिक, ये पॉजिटिव हो गया। अब कंपैरेटिव बनाना है तो क्या करेंगे आप, सेकेंड डिग्री यूज़ करेंगे, स्ट्रॉन्ग का स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्ग का स्ट्रॉन्गर। ओके, वो नेक्स्ट स्लाइड में भी इसमें टाइप अच्छा नहीं हो रहा है, सो लेट अस सी इट। ये है पॉजिटिव डिग्री, ये पॉजिटिव इसने बना दी यहाँ पे। नो अदर प्लेयर ऑफ आवर टीम, बाकी क्या किया आपने, एज स्ट्रॉन्ग एज हार्दिक, राइट। तो आपने अब आपने मतलब नहीं बदला, राइट, मतलब सेम रह गया, मतलब हार्दिक के बराबर कोई भी स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी नहीं है, राइट। देन नेक्स्ट कंपैरेटिव, आप व्हेन यू आर गोइंग टू फॉर्म कंपैरेटिव, तो आप मैंने कहा दो चीज़ें करनी है आपने। कंपैरेटिव में क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्गर, और साथ में इसके साथ भाई चलेगा इसका देन, स्ट्रॉन्गर देन कंपैरेटिव डिग्री। ओके, तो या तो आप सीधा बना दो, हार्दिक इज स्ट्रॉन्गर देन ऑल अदर प्लेयर्स ऑफ आवर टीम, या फिर इसी में आपने इसी तरह से बनाना चाहते हो तो नो अदर प्लेयर ऑफ आवर टीम इज स्ट्रॉन्गर देन हार्दिक, तो ऐसे भी आप बना सकते हो। या सीधा बनाना है तो आप ऐसा सीधा भी बना सकते हो, हार्दिक इज स्ट्रॉन्गर देन, हार्दिक इज स्ट्रॉन्गर देन सेकेंड डिग्री और साथ में देन स्ट्रॉन्गर देन। अब वो सबसे स्ट्रॉन्ग है, और स्ट्रॉन्गेस्ट वो पहले दिया हुआ है आपको। सो स्ट्रॉन्गर देन किससे स्ट्रॉन्गर है वो, ऑल अदर प्लेयर्स ऑफ आवर टीम, ओके, या ऑल प्लेयर्स ऑफ आवर टीम, ऑल अदर। आप सीधा इस तरह से भी बना सकते हो या ऐसे भी बना सकते हो, नो अदर प्लेयर ऑफ आवर टीम इज स्ट्रॉन्गर देन हार्दिक, राइट, मीनिंग आपने सेम रखना है। नाउ लेट अस सी वन मोर एग्जाम्पल, और जिसका जितना प्रैक्टिस करोगे उतना मास्टर बनते जाओ। जैसे स्वाति इज द क्लेवरेस्ट गर्ल इन माई क्लास, स्वाति इज द क्लेवरेस्ट गर्ल इन माई क्लास। अब मुझको बनाना है पॉजिटिव, तो क्लेवरेस्ट का पॉजिटिव क्या हो गया, क्लेवर हो गया, मैंने लिख लिया। साथ में क्या लगाना है हमने, एज लगाना है। तो इसको मैं लिखना रहने देता हूँ क्योंकि ये बहुत ही इसमें लिखा नहीं जा रहा ठीक से, तो यू अंडरस्टैंड दिस। तो आपने क्लेवर लगा दिया फर्स्ट, और साथ में क्या लगा दिया अपनी तरफ से, एज क्लेवर एज। अब यहाँ पे मतलब समझो, स्वाति इज़ द क्लेवरेस्ट गर्ल इन माई क्लास, मतलब सबसे चालाक है वो। कहने का मतलब क्या, उससे उसके बराबर क्लेवर कोई है ही नहीं। तो वही उसी तरह हो जाए कि नो अदर गर्ल इन माई क्लास इज एज क्लेवर एज स्वाति, ये देखिए, नो अदर गर्ल इन माई क्लास इज एज क्लेवर एज स्वाति। तो ये डिग्री बदल गई, कंपैरेटिव हो गई, आपने फर्स्ट डिग्री लगा दी, साथ में मीनिंग भी नहीं चेंज हुआ, राइट। या ऐसे लिख दो, अगर आप वैसे लिखोगे गर्ल इन माई नो, ये नो नहीं लगाएंगे आप तो क्या हो जाएगा, तो मतलब बदल जाएगा, अदर गर्ल्स इन माई क्लास आर एज क्लेवर एज स्वाति, का मतलब कि और भी लड़कियां हैं जो उसके बराबर। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है, ये इज सेइंग दैट स्वाति इज द क्लेवरेस्ट गर्ल इन माई क्लास, तो इसका मतलब इसके बराबर कोई भी क्लेवर नहीं है। नो अदर गर्ल इन माई क्लास इज एज क्लेवर एज स्वाति। अब कंपैरेटिव बनाना है, क्लेवर का क्लेवरेस्ट का कंपैरेटिव ER, क्लेवरर और साथ में क्या लगेगा, देन। तो आप इसी में ऐसे भी कर सकते हो, नो अदर गर्ल इन माई क्लास इज क्लेवरर देन स्वाति, या आप सीधा भी लिख सकते हो, स्वाति इज क्लेवरर देन एनी अदर गर्ल, किसी और लड़की से वो स्मार्ट है या क्लेवर है। या ऑल अदर गर्ल्स भी लिख सकते हैं आप, सेंस सेम रखनी है, मीनिंग सेम रखना है बस। तो पहले आपको बोला गया था कि वो क्लेवरेस्ट गर्ल है, इसका मतलब वो स्वाति क्लेवरर देन, सेकेंड डिग्री लगाई आपने, देन लगा दिया, किससे क्लेवरर देन है, ऑल अदर गर्ल्स, एनी अदर गर्ल। या इसी में भी ऐसे भी बना सकते हो, नो अदर गर्ल इन माई क्लास इज क्लेवरर देन स्वाति, राइट। तो ये प्रैक्टिस से आपको अच्छी तरह से आ जाएगा। अब मान लो एक विल टेक वन मोर एग्जांपल जिसमें हम सुपरलेटिव से पॉजिटिव और कंपैरेटिव बनाएंगे। जैसे मुंबई इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेस टू लिव इन महाराष्ट्र, तो यहाँ से क्या पता चल रहा है हमको, मुंबई जो है मोस्ट एक्सपेंसिव है, मोस्ट, तो ये कौन सी डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री है। टू लिव इन महाराष्ट्र मतलब महाराष्ट्र में जो है सबसे एक्सपेंसिव सिटी जो है मुंबई है।
राइट। तो इसकी पॉजिटिव बनानी है। पॉजिटिव में पता है आपको मोस्ट एक्सपेंसिव, मोस्ट हट जाएगा तो एक्सपेंसिव रह जाएगा, एज एक्सपेंसिव एज। तो यहाँ भी दूसरा कोई शहर नहीं है महाराष्ट्र में जो मुंबई के बराबर महंगा है। तो क्या लिखेंगे हम, नो अदर सिटी इन मुंबई इज एज एक्सपेंसिव एज, sorry, no other city in Maharashtra is as expensive as Mumbai. To live भी लिखना है तो वो भी लिख सकते हो। तो ये है नो अदर प्लेस, ये देखो यहीं से आ गया, नो ही लगाया आपने, साथ में अदर लगा दिया है। अदर भी नहीं लगाओगे तब भी चल पड़ेगा। सो नो प्लेस इन महाराष्ट्र इज एज एक्सपेंसिव टू लिव, यहाँ लिखना है यहाँ लिख दो, नहीं तो एज के बाद भी लिख सकते हो, एज एक्सपेंसिव टू लिव एज मुंबई। ओके, सो नो अदर प्लेस इन महाराष्ट्र इज एज एक्सपेंसिव एज मुंबई। ओके राइट। देन कंपैरेटिव बनानी है तो मोर एक्सपेंसिव हो जाएगा। सो महाराष्ट्र इज मोर एक्सपेंसिव देन ऑल अदर सिटीज इन मुंबई। ओके, तो मुंबई इज, या Mumbai is more expensive than any other place to live in Maharashtra, right? So here you have changed the degree, more expensive. साथ में क्या रखा है, than. Meaning नहीं बदलना चाहिए, meaning should remain the same. और एक example last, we'll take it up. सूरज is the most intelligent of all boys. मतलब लड़कों के बीच में सबसे intelligent सूरज। पॉजिटिव का सीधा हो जाएगा, no other boy is as intelligent as सूरज। पॉजिटिव में आपने एज लगाया दोनों तरफ, फर्स्ट डिग्री लगा दी, और मीनिंग नहीं बदलने के लिए आपने यहाँ नो लगा दिया। नो अदर बॉय मतलब कोई भी लड़का उसके बराबर इंटेलिजेंट नहीं है। और कंपैरेटिव में आप फिर सूरज इज मोर इंटेलिजेंट देन ऑल अदर बॉयज, सब लड़कों में से ज़्यादा इंटेलिजेंट कौन है, सुपर कंपैरेटिव डिग्री में सेकेंड डिग्री, मोर इंटेलिजेंट, मोर हो गया, राइट। तो दिस इज हाउ यू कैन ईजिली कन्वर्ट दीज सेंटेंसेज। अब एक दो एग्जाम्पल हम पॉजिटिव से कंपैरेटिव के लेंगे। लेट अस सी। पॉजिटिव और कंपैरेटिव में सिर्फ दो चीज़ों का कंपैरिजन होता है, राइट, और उनका सुपरलेटिव नहीं बन पाएगा। जैसे मान लो मैं कहता हूँ कि ये सेंटेंस हम लेते हैं, राम इज़ एज टॉल एज श्याम। तो मतलब समझो कि राम जो है श्याम के बराबर ही लंबा है, राइट। अब मुझे पता है मेरे कंपैरेटिव बनानी है, तो मैं टॉल का क्या लिख दूंगा, टॉलर, और साथ में क्या लगा दूंगा, देन, टॉलर देन। ओके ओके, अब अगर मैं देखो टॉलर देन, तो अगर मैं श्याम को यहाँ ले आता हूँ, राम को वहाँ ले आता हूँ, श्याम इज़ टॉलर देन राम, तो क्या वो सही होगा? मैंने ये बना दिया, श्याम इज़ टॉलर देन राम। ओके, तो अब आपके हिसाब से तो ठीक हो गया भाई, टॉल का टॉलर हो गया, सेकेंड डिग्री होगी, साथ में देन लगा दिया, राम श्याम वैसे ही रह गए। लेकिन क्या हुआ, यहाँ मीनिंग बदल गया, द मीनिंग इज चेंज्ड। यहाँ बोल रहा है राम इज़ एज टॉल एज श्याम, मतलब राम और श्याम दोनों बराबर हैं। अगर एक की हाइट 6 फीट है तो दूसरे की भी 6 ही है। लेकिन अगर आप ऐसा कर देंगे श्याम इज़ टॉलर देन राम, तो आपने श्याम को राम से टॉलर बना दिया कंपैरेटिव में, वो गलत हो गया, मीनिंग बदल गया। तो क्या लिखेंगे आप, नॉट लगा देंगे, क्या लिखेंगे, श्याम इज़ नॉट टॉलर देन राम। ओके, श्याम इज़ नॉट टॉलर देन राम, ये यहाँ पे आ गया, राइट। तो ये देखो, श्याम इज़ नॉट टॉलर देन राम, मतलब श्याम राम से टॉलर नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, बराबर हुए, राइट। तो ये ध्यान रखना है, मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। एक और एग्जांपल लेते हैं, a glass of juice is as good as a glass of water। ये बोल रहा है कि जूस का ग्लास भी उतना ही अच्छा है जितना पानी के बराबर ही है दोनों। तो आप क्या करेंगे, ग्लास ऑफ वाटर को यहाँ ले आओ, ग्लास ऑफ जूस को वहाँ ले आओ, गुड का क्या हो जाएगा, कंपैरेटिव में बेटर हो जाएगा, साथ में देन। आपने अपनी तरफ से यही करना है भाई, सिर्फ सेकेंड डिग्री लगानी है, साथ में देन लगाना है। लेकिन अगर आप ऐसा लिख दोगे कि ग्लास ऑफ वाटर इज़ बेटर देन अ ग्लास ऑफ जूस, तो क्या हुआ, मीनिंग बदल गया। आपने कन्वर्ट तो कर दिया, गुड का बेटर बना दिया, साथ में देन लगा दिया, कोई गड़बड़ नहीं है, लेकिन गड़बड़ कहाँ होगी, आपने इसका मीनिंग बदल दिया। यहाँ बोल रहा है कि दोनों बराबर जैसे हैं, और यहाँ आपने क्या कर दिया, यहाँ दोनों को बराबर नहीं कर दिया, सॉरी बराबर एक को बड़ा कर दिया। अगर आप नॉट नहीं लगाएंगे तो आपने क्या लिखना है, ग्लास ऑफ वाटर इज़ नॉट बेटर देन ए ग्लास ऑफ जूस। इसका मतलब क्या है, दोनों बराबर हैं। अगर आप नॉट नहीं लगाएंगे तो आप
ग्लास ऑफ वाटर को अच्छा बना देंगे किससे, ग्लास ऑफ जूस से, जो मीनिंग बदल देता है। आपको मीनिंग सेम रखना है, इसलिए नॉट, राइट। जैसे और एक एग्जांपल देखेंगे आप, क्वेश्चन ए इज़ सिंपल एज क्वेश्चन बी, तो दोनों मतलब सिंपल ही है। तो क्वेश्चन बी को यहाँ ले आओ, क्वेश्चन ए को वहाँ ले जाओ, सिंपल का कंपैरेटिव में क्या हो जाएगा, सिंपलर, तो साथ में क्या लग जाएगा, नॉट। ओके, क्वेश्चन बी इज़ नॉट सिंपलर देन क्वेश्चन ए, मतलब अगर आप नॉट नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, आप बोलेंगे क्वेश्चन बी इज सिंपलर देन क्वेश्चन ए, मतलब बी को ए से ज़्यादा सिंपल बना रहे हैं। लेकिन ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है दोनों एक जैसे ही बराबर ही हैं, दोनों सिंपल बराबर ही है। लेकिन अगर आप नॉट नहीं लगाएंगे तो मीनिंग बदल जाएगा, तो आपने नॉट लगाना है सो दैट मीनिंग रिमेन सेम। क्वेश्चन बी इज़ नॉट सिंपलर देन क्वेश्चन ए। और एक लास्ट एग्जाम्पल, प्रेसिडेंट रूल इज़ नॉट एज गुड एज डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी को यहाँ ले आओ, प्रेसिडेंट रूल को वहाँ ले जाओ, तो गुड का क्या हो जाएगा, बेटर, सेकेंड डिग्री, और साथ में क्या लगेगा, देन लगा दिया आपने। डेमोक्रेसी, अब देखो यहाँ पे बोल रहा है कि प्रेसिडेंट रूल इज़ नॉट एज गुड एज डेमोक्रेसी, मतलब प्रेसिडेंट रूल डेमोक्रेसी जितना अच्छा नहीं है, ठीक है, पहले से ही नेगेटिव है, राइट। तब इसका मतलब क्या हुआ, प्रेसिडेंट रूल डेमोक्रेसी से अच्छा नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, डेमोक्रेसी जो है वो प्रेसिडेंट रूल से अच्छी है। तो डेमोक्रेसी इज़ बेटर देन, यहाँ नॉट हट जाएगा, नॉट हट जाएगा, क्यों हट जाएगा, क्योंकि मीनिंग हमने सेम रखना है। अगर आपने नॉट को आप लिख देंगे यहाँ फिर से, इज़ नॉट बेटर देन, तब आपने इसका मतलब बदल दिया। वहाँ लिखा हुआ है प्रेसिडेंट रूल इज़ नॉट एज गुड एज डेमोक्रेसी, आपने क्या किया, डेमोक्रेसी इज़ नॉट बेटर देन प्रेसिडेंट रूल, तो मीनिंग चेंज हो गया, राइट। आपने मीनिंग सेम रखना है। ऊपर वाले का मीनिंग है प्रेसिडेंट रूल इज़ नॉट एज गुड एज डेमोक्रेसी, कि प्रेसिडेंट रूल डेमोक्रेसी जितना अच्छा नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि डेमोक्रेसी प्रेसिडेंट रूल से अच्छी है। तो इसीलिए जब आप कंपैरेटिव बनाएंगे, सेकेंड डिग्री लगाएंगे, देन लगाएंगे, लेकिन नॉट नहीं लगाएंगे। क्यों, क्योंकि हमने मीनिंग सेम रखना है। तो डेमोक्रेसी इज़ बेटर देन प्रेसिडेंट रूल, राइट। अगर आप नॉट को यहाँ लगा देंगे तो आप मीनिंग बदल देंगे। ऊपर वाला कह रहा है कि प्रेसिडेंट रूल डेमोक्रेसी जितना अच्छा नहीं है, आप नीचे उसको क्या किसमें बदल दे रहे हो, कि आप उल्टा कर दे रहे हो, बोल रहे हो कि डेमोक्रेसी जो है वो प्रेसिडेंट रूल से अच्छी नहीं है। लेकिन मीनिंग अपने सेम रखना है, जो ऊपर वाले का मीनिंग है वही नीचे वाले का भी होना चाहिए। आपने क्या किया, नॉट को हटा दिया। सिंपल सा याद रखो, जहाँ नॉट नहीं लगा है वहाँ नॉट आपने लगा देना है, जहाँ लगा है उसको हटा देना है। पहले हिंदी में समझो सेंटेंस को कि इसका मीनिंग क्या है, और फिर आप उसका मीनिंग रिटेन करो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब ये अला, रोज़ इज़ एज ब्यूटीफुल एज ट्यूलिप, तो ये बोल रहा है रोज़ भी उतना ही ब्यूटीफुल है जितना ट्यूलिप है। तो आप क्या लिखेंगे, ट्यूलिप को यहाँ ले आओ, रोज़ को वहाँ ले जाओ, ब्यूटीफुल का क्या बना देंगे, मोर ब्यूटीफुल, और साथ में क्या लगेंगे, देन। तो अगर आप ट्यूलिप इज़ मोर ब्यूटीफुल देन रोज़ है, तब आपने मीनिंग बदल दिया। लेकिन हमने मीनिंग नहीं बदलना है, तो हम क्या लगाएंगे साथ में, नॉट। ट्यूलिप इज़ नॉट मोर ब्यूटीफुल देन रोज़, मतलब वो ज़्यादा ब्यूटीफुल नहीं है रोज़ के। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ बोला है दोनों बराबर जैसे है, राइट। तो ये अपने ध्यान रखना है व्हेन एवर यू आर ट्रांसफॉर्मिंग सेंटेंसेस। इसी तरह कंपैरेटिव से पॉजिटिव बनाना है। तो फॉर एग्जांपल इस तरह आएंगे, आपको कंपैरेटिव लिखा है मेटल्स आर हार्डर देन नॉन मेटल्स। तो क्या मतलब वो इसका, कि मेटल्स जो है वो नॉन मेटल्स से हार्डर हैं, हार्डर मतलब सख्त हैं, राइट। तो अब आपने इसका पॉजिटिव बनाना है। पॉजिटिव में क्या हो जाएगा, हार्डर का हार्ड हो जाएगा, एज हार्ड एज। नॉन मेटल को यहाँ ले आओ, मेटल को वहाँ ले जाओ, तो नॉन मेटल्स आर, अब देखो ये बोल रहा है मेटल्स आर हार्डर देन नॉन मेटल्स। अगर आप नॉट नहीं लगाएंगे तो मीनिंग बदल जाएगा। तो इसलिए आपने क्या लिखना है, नॉन मेटल्स आर नॉट एज हार्ड एज मेटल्स, राइट। तब मीनिंग सेम हो गया। तब इसका मतलब है मेटल्स जो है वो नॉन मेटल से हार्डर है, और यहाँ भी आपने वही लिखा, नॉन मेटल्स जो है मेटल्स के बराबर हार्ड नहीं है, मतलब वो कम है। तो मीनिंग सेम हो गया। अगर आप नॉट नहीं लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, नॉन मेटल्स आर एज हार्ड एज मेटल्स। तो बोलेंगे आपके दोनों बराबर है, लेकिन यहाँ बोल रहा है मेटल जो है वो हार्डर है। तो इसलिए आपने सेंस सेम रखनी है, मीनिंग। तो आपने यहाँ नॉट लगाया कि नॉन मेटल्स आर नॉट एज हार्ड एज मेटल्स। और एक, चॉकलेट्स आर टेस्टियर देन कुकीज़। तो आप कुकीज़ को यहाँ ले जाओ, चॉकलेट्स को उस तरफ ले जाओ। साथ में आपने टेस्टियर का पॉजिटिव बनाना है, तो टेस्टियर का फर्स्ट डिग्री होता है टेस्टी, और साथ में क्या लगेंगे, एज टेस्टी एज। ये कुकीज़ इधर चला गया,
चॉकलेट इधर आ गया, ठीक है। तो कुकीज़, इस ये बोल रहा है चॉकलेट जो है कुकीज़ से टेस्टियर है। जो जब आप कंपेरेटिव बनाएंगे, सॉरी पॉजिटिव बनाएंगे, तो आप यहाँ नॉट लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप नहीं लगाएंगे तो इसका मतलब उल्टा हो जाएगा। जब नॉट लगा दिया हमने, इसका मतलब है कुकीज़ आर नॉट एज टेस्टी एज चॉकलेट। इसका मतलब है कुकीज़ उतनी टेस्टी नहीं है जितनी चॉकलेट। और यही कह रहा है ये पहले वाला सेंटेंस, ये बोल रहा है चॉकलेट्स जो है वो कुकीज़ से टेस्टियर हैं। तो अगर आप नॉट नहीं लगाएंगे तो इसका मतलब उल्टा हो जाएगा, तो इसलिए आपने नॉट लगाया। आपने बोला कुकीज़ जो है उतनी टेस्टी नहीं है जितनी चॉकलेट, राइट। अनदर एग्जाम्पल, आरुषि's हाउस इज़ बिगर देन हर ऑफिस। तो ये भी वो सिंपल सा है, हर ऑफिस और आरुषि's ऑफिस लिख दो, वो छोटा है उसके घर से। तो जब आप पॉजिटिव बनाएंगे तो बिगर का बिग कर देंगे, और एज बिग एज, तो आरुषि's ऑफिस इज़ नॉट एज बिग एज हर हाउस। ओके, इसी तरह से और एग्जाम्पल्स हैं, यू कैन गो थ्रू देम। मोबाइल फ़ोन्स आर मोर कन्वीनियंट दैन टैबलेट्स। इसका मतलब मोबाइल फ़ोन जो है टैबलेट से ज़्यादा कन्वीनियंट है। तो जब आप पॉजिटिव बनाएंगे, मोर हट जाएगा, कन्वीनियंट रह जाएगा, साथ में एज लग जाएगा, एज कन्वीनियंट, और टैबलेट इधर आ जाएगा, मोबाइल फ़ोन उधर चला गया। तो आप क्या बनाएंगे, इसका नेगेटिव बना देंगे कि टैबलेट्स आर नॉट एज कन्वीनियंट एज मोबाइल फ़ोन्स। नॉट क्यों लगाया? टू रिटेन द सेम मीनिंग। इसका मतलब है मोबाइल फ़ोन ज़्यादा कन्वीनियंट है, लेकिन अगर आप नॉट नहीं लगाएंगे तो इसका मीनिंग बदल जाएगा, तो इसलिए नॉट आपने लगाया। इसका मतलब क्या हुआ, टैबलेट्स उतने कन्वीनियंट नहीं है जितने मोबाइल फ़ोन, राइट। इसी तरह से ड्रिंकिंग इज़ नॉट मोर डेंजरस दैन स्मोकिंग। अब यहाँ नॉट पहले से है, तो यहाँ आपने नॉट हटा देना है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, स्मोकिंग ये है मोर डेंजरस दैन। तो कंपैरेटिव डिग्री है, आपने पॉजिटिव बनानी है, मोर हट जाएगा, एज डेंजरस एज, तो स्मोकिंग इधर जाएगा। तो ड्रिंकिंग इज़ नॉट मोर डेंजरस दैन स्मोकिंग, तो नॉट हटा दो सीधा, स्मोकिंग इज़ एज डेंजरस एज ड्रिंकिंग। So this is exercise for you, and you must practice. The more you practice, the better you will learn. और ये बहुत easy है। देखो मैंने आपको सिंपल सा बताया कि पॉजिटिव डिग्री फर्स्ट होती है, सेकंड होती है कंपैरेटिव, थर्ड होती है सुपरलेटिव। जब आप पॉजिटिव बनाते हैं साथ में एज लगाते हैं, एज गुड एज बैड एज ब्राइट एज, राइट। और जब सुपरलेटिव बनाते हैं तो उसके साथ ER लगता है, जैसे गुड का बेटर हो जाता है, या फार्दर, या फिर आपका जैसे कूल का कूलर, कूलेस्ट थर्ड डिग्री है सुपरलेटिव डिग्री, जिसमें द लगता है साथ में। जैसे मान लो एक सुपरलेटिव से पॉजिटिव से हमने कंपैरेटिव बनाना है, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, ये सुपरलेटिव है, द लार्जेस्ट। तो इसको बोला गया है पॉजिटिव बनाओ या कंपैरेटिव बनाओ, दोनों बनाओ। तो पॉजिटिव में क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट का लार्ज हो जाएगा, एज लार्ज एज, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इंडिया सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, तो मतलब उसके बराबर कोई नहीं है। तो सिंपल लिखना है अपने, नो अदर डेमोक्रेसी इज़ एज लार्ज एज इंडिया, बस हो गया, राइट। कंपैरेटिव बनाना है तो आपने क्या लगाना है, सेकेंड डिग्री लगानी है, लार्ज का लार्जर, साथ में क्या लगाना है, दैन। तो इसका मतलब क्या हो, इंडिया इज़ लार्जर दैन एनी अदर डेमोक्रेसी, मतलब वो किसी और डेमोक्रेसी से बड़ी है, इंडिया लार्जर दैन। एक और एग्जांपल मैं आपके सामने करता हूँ, द पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट आर द ग्रेटेस्ट आर्किटेक्चर। तो ग्रेटेस्ट है मतलब उनसे बड़ा कोई आर्किटेक्चर है नहीं, राइट। तो क्या लिखेंगे आप सीधा, नो अदर आर्किटेक्चर इज एज ग्रेट एज द पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट, पॉजिटिव हो गया। और कंपैरेटिव बनाना है तो ग्रेटर देन हो जाए, तो पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट आर ग्रेटर देन ऑल अदर आर्किटेक्चर्स, क्योंकि वो सबसे बड़ा है। इसी तरह से मिस्टर सीना इज़ द मोस्ट सक्सेसफुल बिजनेसमैन ऑफ हिज टाउन। तो मोस्ट सक्सेसफुल है मतलब उसके बराबर कोई है नहीं, तो सीधा हो जाएगा, नो अदर बिजनेसमैन ऑफ हिज टाउन इज एज सक्सेसफुल एज। ये है आपकी डिग्री फर्स्ट, सक्सेसफुल फर्स्ट डिग्री है, साथ में एज लगाया, बस करते रहो प्रैक्टिस, और यू विल फाइंड इट वेरी इजी वंस यू प्रैक्टिस। बट सबसे बड़ी चीज़ जो मैं बार बार कहता हूँ वो है आपकी नीयत। वो बिल्कुल as a student, your intention should be clear. You should be hungry for learning more and more better. You should grow and evolve every day. अगर वो आपके अंदर इच्छा जाग जाएगी, nobody can stop you from achieving what you want in life. This is only just a hint which I provided to you.
You can go through your books, take more examples, and master the skill. I am quite sure that it won't take more than half an hour or 1 hour for you to learn this concept entirely. और मैं चाहता हूँ कि आप लोग सारे के सारे 100% जो है इसको अटेम्प्ट करके आएँ और करेक्ट करके आएँ, राइट। एक लास्ट एग्जांपल लेके मैं इसको ख़त्म करता हूँ। जैसे द डेड सी इज़ द लोएस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ। अब इसको देख के कईयों के हाथ पैर फूल जाएंगे, और डेड सी, लोएस्ट पॉइंट, अर्थ आ गई इतनी बड़ी। अरे भाई, तुमको नहीं उठानी है धरती, तुमको सिर्फ सेंटेंस देखना है, ठीक है। तुम्हारा मतलब क्या है, तुमने दो ही काम करने हैं। जो पूछा गया होगा उस डिग्री का वो डिग्री लगानी है, साथ में वो एज लगेगा तो फर्स्ट डिग्री पॉजिटिव में लगेगा, और उसमें दैन लगेगा, बस इतना सा काम करना है। जैसे पॉजिटिव बनानी है तो लोएस्ट का क्या हो जाएगा, फर्स्ट डिग्री लो, और साथ में क्या लगेगा, एज लो एज, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि डेड सी इज़ द लोएस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ, मतलब वो सबसे नीचा पॉइंट है डेड सी। तो इसका मतलब उससे नीचे कोई नहीं है, तो क्या लिखेंगे हम सीधा, नो अदर पॉइंट ऑन द अर्थ, हो गया, इज एज लो एज द डेड सी, बस कहानी खत्म, ठीक है। अब कंपैरेटिव बनाना है, आपको पता है लो का कंपैरेटिव सेकंड डिग्री जो है लोअर होता है, साथ में देन लगाना है। सो क्या लिखेंगे सीधा, द डेड सी इज लोअर देन ऑल अदर पॉइंट्स ऑन द अर्थ भी लिख सकते हो, एनी अदर पॉइंट ऑन द अर्थ भी लिख सकते हो, आपके ऊपर, राइट। सो जैसे मानोशी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, तो मतलब सबसे अच्छी दोस्त है, उससे उसके बराबर कोई है ही नहीं, तो क्या लिखेंगे सीधा, नो अदर फ्रेंड ऑफ माइन इज एज गुड एज मानोशी। और जब कंपैरेटिव बनाएंगे तो गुड का बेटर हो जाएगा, साथ में देन लग जाएगा, मानोशी इज बेटर देन एनी अदर फ्रेंड ऑफ माइन, right? So these are examples, you can go through them. I'll just hold the slides, but I will not be covering them up because I think I have covered enough. और जिसके अंदर पढ़ने की नीयत होगी वो ज़रूर सीख लेगा। अगर नहीं भी समझ में आ रहा है, you can write in the comments and I'll definitely help you, right? जैसे बोला है सेरेनाज फोन इज स्मार्टर देन शिप्रास, तो यहाँ पे एक बड़ा है दूसरा छोटा है, बोले सेरेनाज फोन जो है वो स्मार्ट है शिप्रास फ़ोन से, तो इसका हमने पॉजिटिव बनाना है। तो पॉजिटिव में क्या करेंगे, स्मार्टर का स्मार्ट हो जाएगा, एज स्मार्ट एज। अब ये बोल रहा है सेरेना का फ़ोन ज़्यादा स्मार्ट है, तो इसका मतलब क्या हुआ, शिप्रा का फ़ोन उसके बराबर स्मार्ट नहीं है, तो क्या लिखेंगे हम, शिप्रास फ़ोन इज़ नॉट एज स्मार्ट एज सेरेनास, बस सिंपल, राइट। सो ये हैं आपके लिए और एग्जांपल्स जिनको आप देख सकते हो। लेड इज़ द हैवीएस्ट नॉन मेटल, हैवीएस्ट है मतलब उसके बराबर कोई है नहीं, तो सीधा नो अदर मेटल इज एज हैवी एज, राइट। सो यू मे गो थ्रू देम, आई जस्ट यू कैन नोट देम डाउन और स्टॉप द स्लाइड हेयर एंड प्रैक्टिस देम, ओके। You must stop the slideshow or the video, and then you should practice them on your own, right? There are enough examples for practice. हाँ, इसमें एक और चीज़ है, वो शायद इसमें कवर नहीं हुई। इसमें कुछ जैसे मान लो कुछ होते हैं, जैसे इंडिया इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट डेमोक्रेसीज इन द वर्ल्ड। जैसे मान लो एक एग्जांपल आपको इस तरह से आता है, वन ऑफ द बिगेस्ट डेमोक्रेसी। तो वन ऑफ द बिगेस्ट का मतलब क्या हुआ कि उसके बराबर भी हैं, कुछ हैं, राइट। वो लार्जेस्ट नहीं है या बिगेस्ट नहीं है, तो नो अदर नहीं लिख सकते आप, वहाँ क्या लिखेंगे आप, वन ऑफ द बिगेस्ट है मतलब फ्यू, राइट। जैसे क्वेश्चन आया, मान लो इंडिया इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट, क्योंकि इसमें सिर्फ सीधे सीधे एग्जांपल दिए हुए हैं, जैसे लार्जेस्ट है या स्मॉलेस्ट है या हैवियर देन ऑल अदर मेटल्स है, तो द मोस्ट फेमस है, तो इसमें तो सीधा होगा नो अदर इज एज चाइना इज़ लार्जर देन इंडिया, एयर इज़ लाइटर देन वाटर, तो ये तो सीधे सीधे हैं। बट कुछ क्वेश्चन होंगे जैसे लिखा होगा कि इंडिया इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट डेमोक्रेसीज, तो जब आप इसको पॉजिटिव बनाएंगे तो आप सीधा नहीं लिख सकते कि नो अदर डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड इज़ एज बिग एज इंडिया, राइट। ये नहीं होगा क्योंकि उसके बराबर है कुछ वन ऑफ द,
सो आप क्या करेंगे, बिगेस्ट का बिग, सो क्या लिखेंगे आप, सम डेमोक्रेसीज इन द वर्ल्ड आर एज बिग एज इंडिया। सम, जहां पे वन ऑफ द लिखा होगा वहां क्या यूज करेंगे आप, सम, राइट। जहां पे कुछ बिगेस्ट ही लिखा हुआ है तो नन हो जाएगा, तो नो अदर डेमोक्रेसी। तो ये थोड़ा सा आप लोग प्रैक्टिस करें अपनी बुक में, बुक में एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, so you must go through them, okay. uh, right, tiger is right. So this is all in this video, and if you have any doubts uh, you can ask me in the comment box, or I'll be happy to help you. Thank you very much.